اوکے چلیے کل ٹھیک ہے. کون سی آیت میں ہم لوگ 170 171 172 آج 173 آ گئی. چلو تو کوئی پڑھ لیجیے اردو میں 173. ہاں 173 سے شروع کرنا ہے. 173 174 175 176 4 آئے تھے انشاءاللہ آج کور کریں. ٹھیک ہے پاس اردو میں ہے تو پڑھ لیجیے. میں پڑھوں عادل بھائی. ضرور منصور بھائی پڑھ لیجیے. ہیلو ایک سیکنڈ میں بھی میرا اردو میری آواز کیسی ہے؟ آواز آ رہی تھی؟ آ رہی میں ایک سیکنڈ ذرا میں بھی 174 کھول لیتا ہوں 173 سے. بھائی یہ سردی کب ختم ہوتی ہے بھائی اس مڈل ایسٹ میں؟ کوئی اللہ کے بندے بولو بھائی سردیاں چل رہے. گرمیاں کب آئیں گے؟ پھر جب گرمیاں آئیں گے پھر بولیں گے گرمیاں کب ختم ہوں گے. ایک مہینہ اور برداشت کرو. اور ایک مہینہ ہے ہاں ایک یہ ڈیڑھ جو ٹھنڈی ہوائیں یہ کب جاتے؟ ہوائیں وہ بول نہیں سکتے, اچھا انپریڈکٹیبل ہے. نہیں کبھی کسی دن نہیں چلتے, مگر واقع میں سردی کم ہونا بس گرمی شروع ہونا نہیں, سردی ختم ہونا کب تک ہوگا؟ ہوتا ذرا ٹائم لگتا. ایک مہینہ اور ہے ابھی کیا ہے یہ ختم نا, پر ہاں ایک مہینہ لگا لو, 20 دن ایک مہینہ. پورا فیبروری کے بعد میں کم سے کم سردی کی شدت حیدرآباد کی تو بھی ہو جانا, پورا حیدرآباد سے زیادہ ہے. نہیں اب سلولی کم ہوتی ہے. ہاں سلولی ریاض میں اور زیادہ ہے, اور ریاض میں زیادہ ہی رہتی, پھر بھی سمندر ہے تو کمی بھی. چلیے 173 174 175 پڑھو عادل بھائی. 173 174 اور 175 176 چار پڑھنا ہے عادل بھائی. پڑھ لیں گے آج. ٹھیک ہے 173 74 75 76 بھی 76 چوتھی آیت. ہاں ٹھیک ہے عادل بھائی, چار پڑھ رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم پر مردہ اور بہا ہوا خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے. پھر جو مجبور ہو جائے اور حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو, اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں. اللہ بخشش کرنے والا مہربان ہے. 174 بے شک جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں, یقین مانو کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. قیامت کے دن اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا نہ انہیں پاک کرے گا, بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. 175 یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے. یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں. 176 ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ نے سچی کتاب اتاری اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے خلاف میں ہیں. ہوگا دل چلیے شکریہ. تو ایک تو یہ ایکچولی کل کے آیتوں سے کنٹینیو لنک ہو رہا ہے. جیسے کہ
ہمارا جو مین ٹاپک تھا 168 سے جو چل رہا حلالن طیبن، حلال اور طیب چیزوں کو استعمال کرو، چاہے کھانے میں ہو، چاہے کمائی میں ہو، چاہے زندگی جینے میں ہو، وہی ٹاپک ایک جنرل ٹاپک چل رہا ہے. اس میں سے جو ہے بڑے باتوں کو شروع کے 4 آیتوں میں بولا گیا کہ حرام کے راستے پہ، خواہشہ چیزوں پہ مت جاؤ، شیطانی چیزوں پہ مت جاؤ، شیطان کے راستے پہ مت جاؤ، غلط چیزیں چاہے وہ ماں باپ کی طرف سے، باپ دادا کے طریقے کی وجہ سے بھی آئے، بھیڑ بکریوں کی طرح مت بنو. یہ جو ہے پچھلے 4 آیتیں جنرل چل رہی تھی. اب جو نیکسٹ 4 آیتیں آج ہم لوگ کور کریں گے، اب یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے اسپیسیفکلی کھانے کے بارے میں ہے. کھانے کے بارے میں مطلب لٹرلی جو چیز منہ میں ڈالی جاتی ہے، جیسا گوشت، چاول، اس کے سب کیٹیگریز کے اوپر فوکس کر رہے ہیں نیکسٹ آیتیں، کیونکہ وہ بھی حلال طیبن میں یہ بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ آپ سور کا گوشت نہیں کھانا، شراب نہیں پینا، اور جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام ذبح ہوا تو بھی نہیں کھانا. تو یہ سب ایک سب سیٹ ہے، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. حلالن طیبن جو چیزیں اللہ تعالیٰ پیور تمہارے لیے زمین پہ بنائے، زمینوں میں اگائے اور جو ہے تمہارے لیے رکھے، چاہے وہ حلال بیویاں ہو، حلال کمائی ہو، یہ سب کو کور کرتے ہوئے اب ایک چھوٹا سا جو ہے یہ سب سیٹ بھی آنے لگ گیا کہ مسلمانوں کا کھانا کیا ہونا چاہیے، کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے. تو یہ جو ہے آیت نمبر 173 اس کے اوپر فوکس کریں گے. تو یہ ایک سب سیٹ ہے. اس کے علاوہ میں کل جو ہم لوگ ماشاءاللہ بہت اٹینشن سے آپ لوگ سنیں کہ جو حرام کے کمائیاں ہے، جو خصوصاً بزنس میں کاروبار کے لوگ جو بیچتے، مارکیٹنگ کرتے، کنٹریکٹ حاصل کرتے، آرڈر حاصل کرتے، اس میں جو مسئلے مسائل، جو باریکیاں ہیں، کہیں ان کے وجہ سے، غلطیوں کے وجہ سے ہم لوگ حرام تو نہیں کما رہے، ہماری آمدنی حرام تو نہیں ہو جا رہی، اس کی غور و فکر الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے کرے. اور ہم لوگ کئی ٹاپکوں کو ڈسکس کرے کاروباروں میں خصوصاً جو لوگ ہیں. تو ایک کل اپنے ساتھیوں کے پاس سے ایک بہترین سوال آیا تھا کلاس ہو جانے کے بعد میں. ایک اپنے بھائی جو ہے میرے سے سوال پوچھے. ہلو عادل بھائی، آواز ہیلو، آواز اب آ رہی. اچھا ٹھیک ہے. تھوڑا کل کوئی ہوٹل میں سوال شاید سگنل. کر رہے تھے. ہاں، تو وہ سوال تک کل کا جو سوال پوچھے تھے ساتھی میرے سے کلاس ہونے کے بعد میں، وہ سوال کو ذرا جنرلائز لیے تو میرے حساب سے وہ سوال کئی لوگ کے ساتھ زندگی میں گزرتا، اور انہوں نے بہت بہترین سوال پوچھے تھے اپنے بھائی. تو میں وہ سوال کو ایک جنرل طریقے سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا یہاں پہ آج. تھوڑا اس کا جواب مطلب میں دے دیا تھا ان کو، مگر میں تھوڑا سا اس کو ایلابریٹ کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ کئی بار جو چیزیں، کاروبار کیسا چلنا، پھر آپ کا پرسنٹیج کیسا رہنا، کیا چیز حلال ہے، اس کے اوپر میں تھوڑا سا پازیٹیو چیزیں تھوڑی بھی بتانا چاہ رہا تھا کہ ہاں ایسا کر سکتے ہیں. تو سوال یہ تھا کہ سمجھیے آپ کنٹریکٹ لیے کسی چیز کا، اور آپ کوئی چیز لا کے دے رہے، سمجھے آپ واشنگ مشین کا آرڈر لیے اور انہیں بولا بھائی میرے کو واشنگ مشین لا کے دے دو. تو آپ واشنگ مشین اگر انہیں گیا تو اس کو 1000 ریال میں ملتا، تو آپ اس کو 1000 ریال بولے، 1000 ریال میں ہوتا بلکہ، مگر آپ اپنا دماغ انفلوئنس لگا کے آپ جو ہے گھوم کے دور جا کے دور کے دکان پہ ڈھونڈ کے پیٹرول لگا کے یا اپنے دوست کی پہچانت نکال کے انہیں آپ کو 900 ریال میں دے دیا. تو آپ کو 100 ریال کا فائدہ ہوا، اور اس میں سے پھر 50 ریال پیٹرول پہ لگ گئے، تو سمجھو 50 ریال کا فائدہ ہوا، تو 1000 روپے میں بیچے. تو اب انہیں اگر سامنے والا، خریدنے والا جس کے گھر میں لگا ہے، انہیں اگر اسپیسیفکلی پوچھا کہ بھائی یہ کتنے کا ہے، تو اب وہ 900 میں خریدے بول کے بولنا، یا نہیں 1000 میرا ریٹ ہے، میں 1000 میں آپ کو بیچ رہا ہوں، آپ 1000 میں ہے خریدنا اس کی قیمت، یا وہ 50 ریال جو پھر آپ پیٹرول پہ لگائے اور آپ کو فائدہ ملا، آپ یہ بلک میں لینے کی وجہ سے آپ کا ریٹ الگ رہتا اور 1-2 ریٹیل میں لینے کا ریٹ الگ رہتا.
ہول سیل کا ریٹ اور ریٹیل کا ریٹ الگ رہتا. مگر اب وہ یہ باریکیاں تو بزنس کے باریکیاں ہیں. کسٹمر کیا بولتا میرے کو نہیں معلوم. میں تمہارے کو 900 میں تم لے کے آئے تو میرے سے 1000 لیے تو میرے کو الو بنائے, جھوٹ بول کے جو ہے معاملہ گرم ہو سکتا اور نا اتفاقیاں ہو سکتے, بزنس کو نقصان ہو سکتا. تو ایسے معاملات میں جو ہے کیسے ہینڈل کرنا اس چیز کو. پہلی چیز یہ لینا تو حلال ہے کیونکہ آپ کا پیٹرول لگا, آپ کا ٹائم لگا. اگر انہیں گیا خود تو اس کا بھی تو پیٹرول جاتا, اس کا بھی ٹائم لگاتا, مگر انہیں اس چیز کو ورث نہیں لیتا. انہیں بس یہ بتا تم کتنے میں لیے, میرے کو بل بتاؤ, میں اتنے پیسے دیتا ہوں. اب انہیں یہ چیزوں میں نہیں جاتا کہ بھائی میں تمہارا فائدہ کتنا ہوا, تمہارا پیٹرول لگا, پیٹرول کے پیسے کیا ہے, وہ سب نہیں لیتا ہوں. بولتا ہوں میں بلک میں آرڈر دے رہا ہوں, میرے کو بس وہ ریٹ ہی ہونا بول کے بولتا. تو ایسے معاملات میں کیا ہم پوری چیزاں کلیئرلی کھول کے بتانا ہے یا خاموشی اختیار کر کے آپ یہ 1000 میں پڑا, یا آپ کو 1000 میں دے رہا ہوں, یہ 1000 میں آپ کو لے لیجئے, اس طریقے سے بولنا یا یہ بریک ڈاؤن بولنا ضروری ہے نہیں ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے, یہ سوال تھا. اور یہ میرے حساب سے کئی بار جنرل بزنس میں بھی لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا جو آرڈر حاصل کرتے, یعنی تو جو مطلب بزنس میں ہے اس طریقے سے. تو اس سے ایک چیز میں اسپیسیفکلی یہ کلیئر کر دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی محنت اور آپ کے کنیکشنز کی وجہ سے آپ جو کمائے بیچ میں جو 100 ریال کا آپ کو پروفٹ ہے, یہ آپ کا جائز ہے, حق جائز ہے. مگر اسلام جو ہے کلیئرلی جھوٹ بولنے کی تنقید نہیں کرتا. ہاں, جھوٹ بولے بغیر, ڈیٹیلز نہیں دیے بغیر بھی معاملہ چلا سکتے حکمتن. جیسے کہ اب آپ جھوٹ تو نہیں بول سکتے کہ ہاں میرے کو 900 نے 1000 میں خریدا, میں میرے پیٹرول بل کے پیسے وہ سب بچا کے ٹوٹل 1000 تو نہیں بول سکتے. ہاں یہ بول سکتے کہ جو ہے باریکیوں کو چھپا دے سکتے, جیسے کہ وہ چیزیں جس کے وجہ سے فتنہ ہو اور جھوٹ بھی نہ ہو, وہ ایک طریقے سے ترتیباً جو ہے مصلیتاً جو ہے اس کو پیش کر سکتے. جیسے کہ اس کا قرآن حدیث سے پہلے آپ جو ہے پروف سن لیجئے, اس کے بعد میں آپ کو پتا چلتا کہ یہ کہاں سے آ رہی بات اور اس کی وجود کیا ہے اور اس کا پروف کیا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے, اور اس سورہ طٰہٰ میں اور کئی جگہ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ جو ہے ان کو جو ہے فرعون ان کے پیچھے پڑ گیا تھا, اور جب انہوں چھوٹے بچے تھے تو انہیں جو ہے پورے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کے لیے آرمی کو بھیجا. تو جب اللہ تعالیٰ ان کے ماں کو جو ہے بولے کہ آپ اپنے بچے کو, موسیٰ علیہ السلام کو چھوٹے تھے, ان کو ایک چھوٹے چیز میں ڈال دے کے نائل میں چھوڑ دیجئے, میرے پہ توکل کیجئے, میرے پہ بھروسہ کیجئے, میں بچانے والا ہوں اور بہترین کام کرنے والا ہوں. اور انہوں پریشانی کے حال میں اللہ کے اوپر توکل کرے. بی بی ہاجرہ کے جیسے نیک تھے موسیٰ علیہ السلام کی ماں, اور انہوں نے بھی اللہ کے فیصلے کے اوپر, اب وہ اللہ کا فیصلہ کیسا ان تک پہنچا, وہ وہی ہے. انہوں پیغمبر تھے, عورتوں تو پیغمبر نہیں تھے, تو کس طریقے سے وہی اتری یا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ الہام ڈالے, وہ تھوڑا کنٹروورشیل ہے, اس میں نہ ہی جائیں گے. مگر بیسیکلی انہوں نے اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دیا, اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کرے کہ وہاں پہ فرعون جو دشمن تھا, ان کی بیوی جو ان کے گھر میں رہتی تھی آسیہ, جو کہ بہت نیک صالحین, دنیا کے 4 نیک صالحین عورتوں میں ان کا نام ہے 4, اب جو زمین میں آج تک پیدا ہوئے ان میں سے 4 نیک میں سے انہوں ایک ہے آسیہ. تو آسیہ کیا کرتے, ان کو اٹھا لیتے موسیٰ علیہ السلام کو, اور جو ہے گود میں لے لیتے اور پالنے کا فیصلہ کرتے, اور فرعون بھی جو ہے غلطی سے اوکے بھی بول دیتا. مگر اب اللہ کے مسئلے دیکھو, موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے چھوٹے رہنے کے باوجود, کچھ لوگ ٹرائی کرے تو بھی کسی کا دودھ نہیں قبول کرتے, اور بھوک سے تڑپ رہے تو انہوں بے چین ہو جاتے کہ بھائی کوئی تو بھی ہے کیا, بھائی کس کا دودھ پلانا ہے بچے کو بول کے. تو وہاں پہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن رہتے, ان کا نام مریم ہے. مریم جو ہے یہ سب چیزوں کو آبزرو کرتے رہتے, ان کو سب معلوم. انہوں ایک دم جاتے آسیہ کے سامنے اور بولتے یہ نہیں بولتے کہ انہوں بہن ہے, یہ نہیں بولتے کہ انہوں موسیٰ ہے, یہ نہیں بولتے. ہیلو, میری آواز آ رہی ہے, ایکو ہو رہی؟ آ رہی آواز آ رہی. تو ہے شعبے آ گئے. ہاں, تو انہوں مریم جو رہتے موسیٰ علیہ السلام کے سگے بڑے بہن, انہوں جھوٹ نہیں بولتے مگر سچ بھی نہیں بولتے. تو انہوں مصلیتاً کھڑے رہتے اور بولتے ایز اف انہوں موسیٰ علیہ السلام کو پہچانتے اس نے, جیسا ہاں یہ بچے کا مسئلہ ہے نا, میرے کو ایک عورت معلوم ہے
जिसका दूध ये बच्चा पिएगा। तो आसिया बोलते प्लीज मेरे को बताओ भाई, मैं डेस्परेट हूँ। चलो मैं वो घर जो है दूर से बता देती हूँ, आप लोग चलो, हालांकि घर उनका ही छो, माँ भी उन्हीं है, बच्चा भी, भाई भी उनका ही, और कुछ नहीं बोलते, डिटेल्स को छुपा देते, मसलियतन सीधा बोलते, झूठ नहीं बोलते। ये बच्चा किसका दूध पीता मेरे को मालूम है, उसका दूध जरूर पीएगा। चलो लेके जाते, माँ के पास देते, मूसा अलैहिस्सलाम माँ का दूध पी लेते, सगी माँ का, और बोलते हैं कि चलो इनको तनख्वाह फिक्स कर दो। तो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ बोलते मैं नहीं आती, फिरौन के महल में मेरे को डर होता, बच्चे कुछ मेरे पास भेजो। चलो भाई, दिन में 3 बार बच्चा खुद आएगा नौकर चाकरों के साथ उसके चैरियट में, और आएगा माँ के पास, थोड़ी देर रहेगा सगी माँ के पास प्रोटेक्शन के साथ, और पैसे भी मिलेंगे, और बच्चे के साथ भी माँ को खेलने का मौका मिलेगा। इतना अच्छा सेटअप करे। मगर मरियम जो है झूठ नहीं बोले, मगर सच भी नहीं बोले, मसलियतन क्या बोले कि भाई जो सच बात है वही बात बोले, कि भाई ये बच्चे को दूध पिलाने वाली कौन सी औरत सही रहेंगी, मैं आपको बताऊंगी। हालांकि हक बोलने वाले, सच्चाई बोलने वाले, सच से हट के कुछ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो हक ही बोलेंगे जबान में, वैसी बात नहीं है। मसलियतन आप सच को नहीं बोलना, क्योंकि सच अगर बोलने के बाद में सामने वाला उसको मिसअंडरस्टैंड करता। और अगर देखे जैसे इस मामले में आप 900 रियाल में खरीदे वो चीज वॉशिंग मशीन, मगर 50 रियाल का पेट्रोल लग गया, 50 रियाल का आपका छुट्टी लगा के टाइम चले गए, वो 100 रियाल आपकी मेहनत, आपका दिमाग और जो है आपकी सलाहियत के पैसे थे, मगर सामने वाला उसको अप्रिशिएट नहीं करना चाहता, तो आप बोल सकते टोटल प्राइस 1000 रियाल है, मेरा प्राइस 1000 रियाल है, ये कितने में पड़ा भाई, कितने में पड़ा बोले तो पेपर पे बिल में कितना बना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको कितना पड़ा, 1000 रियाल में पड़ा, मेरा प्राइस 1000 रियाल, इसकी कीमत कितनी है, 900 थी होंगी वहां पे निकली, जब आप कौन सी के गांव में जाके बड़े वेयर हाउस से ढूंढ के निकाले, वहां पे 900 थी। अब रियाद में आए तक इसकी कीमत 1000 हो गई, क्योंकि 50 का पेट्रोल हो गया और 50 की आपकी रियाल की मेहनत हो गई, तो इसकी कीमत कितने में, आपको कितने में पड़ी, 1000 रियाल बोलते। तो अगर आप और सच बोले, जैसा मरियम अगर और सच बोलते कि नहीं इसमें 900 तो मेरे को पड़ा, मेरा पेट्रोल है, बोले तो मैं नहीं देता पेट्रोल, मैं नहीं देता, वो नहीं देता, कितना का गो होता पेट्रोल के, ऐसा कैसे होते, तुम्हारे टाइम का क्या है, मैं ऑर्डर दिया वही बड़ी बात है, मैं किसी और को दो, ऐसा बोलते। क्योंकि दूसरे लोग मार्केट में साफ झूठ बोल दिए कि भाई वो लोग 1100 में बेच दे रहे हो लोग अपने हिसाब से, और झूठ बोल रहे हैं कि भाई कहीं भी जाके ढूंढ लो, पूरा सऊदी में ढूंढ लो, 1100 से ज्यादा कम में नहीं मिलता बोल के। तो वैसे टाइम पे अगर आप बोले तो जो है मामला खराब होता। तो ऐसे मामलात में जहाँ पे कस्टमर अंडरस्टैंड नहीं करता, जब तक कि उन्हें खुद गाड़ी लेके जाके घूम के धूप में धापोशी खर के उतना पेट्रोल जला के टाइम जला के जब 900 लेके आके जब बोलता क्या वर्थ है, 900 में उतनी दूर जाके एक दिन की छुट्टी लगा के ये बंदे को मैं दे दिया तो 1000 में ये फायदा था, वो रियलाइज करने को टाइम लगता, मगर शुरू में नहीं रियलाइज करता। कस्टमर हमेशा कम से कम चीजों को निकालने की कोशिश करता, पूरा निचोड़ने की कोशिश करता, सामने वाले को इस्तेमाल करने की कोशिश करता। तो जब ऐसा मार्केट का मौशरा है, तो जैसा फिरौन और आसिया अलैहिस्सलाम का मामला है, तो जो है आप जो है मसलियतन पूरा इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन खोद खोद के बारीकियां देने की जरूरत नहीं है, मोटा जो है ये है बोल के आप बोल सकते। तो यहाँ पे इससे पता ये चला कि हर बार कंप्लीटली सवाल पूछने पे पूरी बारीकियां देना जरूरत नहीं है, हिकमतन इस तरीके से सिचुएशन से बच सकते हैं और ताल्लुकात भी बना के रख सकते हैं कस्टमर से, और बिजनेस भी कर सकते हैं और फायदा भी कर सकते हैं। वरना वो बंदा बगैर मेहनत के, उसके बगैर प्रॉफिट के उन्हें क्यों काम करेंगे, एक बात है। तो ये मार्केट के थोड़े जरूरियात है, तो इसके हिसाब से ऐसा आप मसलियतन कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप धोखा भी दे दो, मतलब आप बेकार चीज 400 रियाल की वॉशिंग मशीन को 900 रियाल के कैटेगरी में डाल के ये पावरफुल है बोल के बेच दे रहे, ये हराम है, ये धोखा है। उसको अननेसरी चढ़ा के, हालांकि आप डुप्लीकेट चीज लेके आए, लो क्वालिटी की चीज लेके आए जो 400 में पड़ी, मगर मार्केट में 900 में भी बिक रही, तो मैं 900 का रेट डालता हूँ बोलते वो भी गलत है। तो यानी तो इसकी ज्यादा तारीफ करना, जो आप टोटल 1000 रियाल में बेच रहे हो उसको बहुत ज्यादा तारीफ करना, अरे ये ऐसी वॉशिंग मशीन है जर्मन टेक्नोलॉजी, जबकि वो इंडिया चाइना से बनी हुई है। आप बोल रहे हो उसको बेचने के लिए जर्मन टेक्नोलॉजी है, ये एक बार चली तो कुछ भी नहीं, वारंटी उसके ऊपर 1 साल है, मगर अपने तरफ से झूठ बोल दिया 10 साल बोल के, ताकि उन्हें आंख बंद करके ले लेना बोल के, बाद में मैं भाग गया फिर उसका मेरे को क्या मुंह देखना है बोल के बोल रहे। ये धोखे के कारोबार का ये लाइसेंस नहीं देता, जो मैं आपको जो इंसिडेंट पेश कर रहा हूँ उससे ये सब चीजों का नहीं है। ये जो मछलियतन जब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बेस्ट सोल्यूशन है। तो ये बहुत अच्छा सवाल था, मैं मेरे ओपिनियन शेयर करना चाह रहा था, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, खुसूसन बिजनेस वाले लोग आप अपना नजरिया और एक्सपीरियंस से शेयर कीजिए, जैसे मुजम्मिल भाई है, शोएब भाई है,
आप लोग बिजनेस, मंसूर भाई भी बिजनेस में अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग इस ओपिनियन के बारे में क्या है, आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे, आप थोड़ा शेयर कीजिए। भाई चलेगा शुएब है कहाँ है? नहीं चले गए जब से थे। अरे हो इनकमिंग आउटगोइंग। आदिल भाई अब अच्छा समझा, आदिल भाई जबरदस्त समझा है, एकदम क्लियर है, आप जो बताया वो सही है, वो आपकी बात, मुतमईन हूँ मैं आपकी बात से। शुक्रिया। चलिए फिर तो ठीक है, चलिए कंटिन्यू करेंगे। वो पहलू भी डिस्कस करना जरूरी था, इसलिए उसमें थोड़ा सा टाइम ले लिया मैं। चलिए तो आज जो आयतें हम लोग पढ़ने वाले हैं, आयत नंबर 173 से करेंगे। और मैं आपको पस मंजर बता दिया था कि जो है आयत तो जनरल चल रही थी 168 से हलालन तय्यबन के ताल्लुक से, और बिस्सुई और फहशाई चीज़ें जो शैतान की चीजें हैं उनसे दूर रहने की जनरल बातों पे बात चल रही थी। अब थोड़ा आयतें डिटेल आ रही है, खुसूसन खाने के चीजों के बारे में, क्योंकि हराम चीजें, रुश्वत का हराम का खाना भी जैसा आपकी बात को खराब करता, आप गंदे चीजें भी खाएंगे फिजिकली, जैसे कि गंदा गोश्त या सुअर का गोश्त या शराब, ये भी आपके जिस्म को भी तबाह करेंगे और आपके रूहानियत, रूह की ताकत को भी कमजोर करेंगे। इसलिए भी उसकी अहमियत दी गई है। इसलिए चंद आयत इसके बारे में डिटेली आए हैं, और कई और जगह भी कुरान में ये टॉपिक फिर रिपीट हुआ है। चलिए तो अब जरा डीप में मैं दोबारा आयत नंबर 173 फिर मैं ट्रांसलेशन से पढ़ता हूँ आपके सामने, तो यहाँ से इंशाल्लाह फिर तुम पर मुर्दा, खून और सुअर का गोश्त हराम कर दिया गया। चार चीजें। मुर्दा मतलब जो जानवर अपने आप मर गया, कोई बीमारी की वजह से, या तीर मारने की वजह से, या गिर जाने की वजह से, या गर्मी की वजह से गिर जाने से, ये जानवर आप नहीं खा सकते। क्यों? जब तक उसके ऊपर अल्लाह का नाम लेके जुबान नहीं करे, आप वो गोश्त नहीं खा सकते, चाहे वो जितना चिकन रहो, बकरा रहो, मटन रहो, या इतना बड़ा गाय रहो, या ऊंट भी रहो। उसके जब मरने के तरीके से वो हलाल हराम होता, क्योंकि अल्लाह का नाम लेना जरूरी है, उसका खून बहाना जरूरी है, फला फला। तो ये मुर्दा गोश्त के बारे में पहली बात बोली जा रही है। और खून नहीं खाना। पहले के जमाने में गोश्त के अंदर खून रहता था, वो खून को नहीं निकालते थे, तो खून का अरख सूप बन के निकलता था और वो शौक से पीते थे लोग, तो खून भी बंद किया गया। सुअर का गोश्त, और हर वो चीज जिसपे अल्लाह ताला के सिवा दूसरों का नाम पुकारा गया। ये देखिए, ये चार चीजें हैं मगर बहुत बारीक चीजें हैं। चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्लाह ताला के सिवाय दूसरों का नाम अगर ले लिए थे, फॉर एग्जाम्पल आप अगर जो है खीर बनाए, खीर में गोश्त वोश्त तो नहीं है, तो गोश्त में अल्लाह का नाम लेने की जरूरत नहीं है। आप खीर तो दूध और चावल से बना लिए खीर, मगर वो खीर बनाने के वक्त वो घर में बना लिए, कोई भी बनाए, पड़ोसी भी बनाए, क्रिश्चियन भी बनाए, हिंदू भी बनाए, खा ले सकते। मगर अगर क्रिश्चियन और हिंदू उसके ऊपर भगवान का नाम लिए, राम का नाम लिए, जीसस का नाम लिए, किसी और का नाम लिए, आपका नाम लिए, बाप का नाम लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम लिए, अल्लाह के अलावा किसी और का भी नाम लिए, वो चीज जब हराम हो जाती, जब वो खीर हराम हो जाती। वरना खीर हो, प्रसाद हो, खिचड़ी हो, खट्टा हो, खीमा हो, ये सब आपके लिए हलाल है, अनलेस कि उसके ऊपर किसी का भी नाम न लो। खाली बनाओ खा लो, खाली बनाए खा लिए, रेस्टोरेंट में गए पैसे देके खा लिए, कोई मसला नहीं। स्पेशली उसके ऊपर किसी और का नाम कौन लगाते? प्रसाद। मंदिर में जो प्रसाद चढ़ता, भोग चढ़ता, जैसा कि ये आरती करे मंदिर के अंदर, ये प्रसाद है, ये मीठा है, ये सबको बांटो, ये भगवान का प्रसाद है, बोलते वो थी अच्छी खीर, मगर उसके ऊपर किसी और इंसान का नाम, चाहे वो उनको भगवान बोलो नको बोलो, वो रियल में भगवान है नहीं है, उसके वजह से वो चीज फिर आपके काबिल नहीं हो जाती। इसके जैसे आदिल भाई फिर ऐसा बोले तो क्या बोलते, फिर ये फातिहा वगैरह जो देते, इनका सवाब गौसे आजम को पहुंचो, इसका सवाब इनको पहुंचो, मरहूम इनको पहुंचो बोल के जो खाने पे पका के फूकते करते बोले, तो वो चीज भी फिर हरामी हो जाती ना। मेरा भी ये क्वेश्चन है। और फिर इंतकाल होने के बाद भी लोगों का नाम लेके डालते हैं कि इनके नाम से पूरा बगार डालते, सब करते, फिर हर साल को साल फातिहा करना, फिर
जो भी आया गौस पाक जितने भी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सबके नाम पे डालते, तो ये भी जरूरी है क्या? ये भी करना वो है क्या? शुरू से कर लेते आ रहे हैं, इसलिए पूछ रहे हैं आपसे। ये हाँ, मैं अभी वही टॉपिक ऐसा जबान से निकाला था जाकिर नायक का नाम लेके, और आप दोनों एकदम सेम सवाल पूछ लिए जो मैं अब भी बताने वाला था। हाँ, आप दोनों का सवाल सही है, वो भी हराम है, क्योंकि अल्लाह के अलावा रसूल अल्लाह का भी नाम ले लो, गौसे पाक का भी नाम ले लो, किसी और का भी नाम ले लिए, उनके थ्रू, उनके तफेल में, उनके सवाब में ये सब चीजें पसंद नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला बोले मेरे अलावा कोई और नाम। अब आप अल्लाह के अलावा किसका भी नाम ले लो, इरेलेवेंट हो जाती, वो चीज उनको देने की है, क्योंकि अल्लाह ताला इस मामले में आदिल भाई एक मिनट, मेरे को ये पूछना है, लेकिन ये मजबूरी है तो क्या करना? हम नहीं करना चाह रहे हैं, जब से मेरे को दीनियात 2 साल से मालूम हो रही है, लेकिन मैं नहीं करना चाह रही, लेकिन अब सास की उससे मेरे को करना पड़ा, तो क्या करना? इसका क्या हाल है? मैं तो इरादा नहीं रहता, लेकिन मतलब नाराज हो जाते, फिर नहीं वो करते, बात नहीं, कुछ नहीं, बहुत हो जाता, तो ये कैसा करना? करके हम गुनाह हो रहे हैं क्या है? ये पूछना है। हाँ, इसका सवाल आयत के अंदर ही है। आयत में आधी पढ़ा, पूरी पढ़ते आपका सवाल सिर्फ आप ही के लिए आयत उतरी, जैसा देखिए आपके सवाल का जवाब है। आयत क्या है? तुम पर मुर्दा, खून और सुअर का गोश्त, और चौथी चीज हर वो चीज जिस पर अल्लाह ताला के सिवाय दूसरों का नाम पुकारा गया वो हराम है। अब उसके बाद में देखिए, फिर जो मजबूर हो जाएं और हद से बढ़ने वाले और ज्यादती करने वाले ना हो, मतलब आप पे जबरदस्ती कर रहे हैं, हालांकि आपको करना पसंद नहीं है, आप जिद्दी में नहीं कर रहे, आप अल्लाह के नाफरमानी नहीं करना चाह रहे, उस पर उनके खाने में कोई गुनाह नहीं है। ये थी कंप्लीट आयत। अल्लाह ताला बख्शिश करने वाला मेहरबान है। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। गफूर क्यों बोल रहा? गुनाह हो गया, जबरदस्ती गौसे पाक के फाते का खिला दिए, इसका खिला दिए, नहीं है तो नाराज हो जाते, तकलीफ देते, अब क्या करते, मजबूर में कान लड़ लेते, गलती कर लेते, खा लेते, तो अल्लाह बोल रहे इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, मैं गफूर हूँ, मैं माफ कर देता हूँ, आपका हिसाब नहीं होने वाला है। आपको परेशान करे, जबरदस्ती करे तो आपको पूछ नहीं है, कर ले सकते। इस वजह से हिकमतन जो है, कई बार मेरे साथ भी ऐसी होता, हमारे खानदान में भी कुछ है, और वो लोग जो है खानदान के, मतलब अब क्या बोलूं, जाना पड़ता, बैठना पड़ता, और समझाए तो भी सुनते नहीं, और जितनी बार वो टॉपिक छेड़े शिद्दत में आ जाते। तो उसके बाद में जो है तरीका ये है, आप एक चीज करना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के खा लेना, अगर आपको ऐसा इस तरीके से कर रहे, कोई और चीज का नाम लेके कर रहे हैं तो। लोग क्या करते हैं, खुसूसन ये अहले हदीस तबका में देखा, इतनी शिद्दत से इसको प्रेजेंट करते कि कोई अगर खाना ला के दिया तो खाना लेके जाके जमीन में खोद के दफन कर देते, पूरी हो, कुंडे हो, कुछ भी हो। अब सामने वाले को कितनी शिद्दत आती, तो नहीं खाया अंदर रख ले, कहीं तो भी फेंक दे, फ्रिज में रख ले, कुछ भी नहीं, सामने फेंक दे रहे, तो सामने वाले को तकलीफ नहीं होती, रिज़्क़ की बेहुरमती नहीं होती, इतनी महंगी बिरयानी बर्बाद होती, गरीब को दे दो, काफिर को दे दो, नौकरन को दे दो। तो इसमें शिद्दत से सामने वालों के पास आके लड़ना झगड़ना नहीं करना, और तुम ये चीज फेंक दे रहे हो उसके आंखों के सामने, तो वो आपको जो है सामने वाला फिर कैसा रिएक्ट करेगा, फिर आप उसको दावा कैसा कर सकते हो, उसको कैसा समझा सकते हैं, उन्हें उतने गुस्से तेज में रहा तो उन्हें याद रखेगा, तुम्हारी बात सुनेगा, तुम्हारे को फिर कभी कुरान की बात बोलने देगा। तो इसलिए इतने जज्बाती नहीं होना अगर जुल्म का तरीका हो रहा तो। अब मगर इसका ये मतलब नहीं है कि इसको इतना आसान बना दिए कि ऑफिस में दिवाली के दिन मिठाई दे रहे कोई हिंदू, मैं तिरुपति जाके आया, और उन्हें तुम्हारा जूनियर, तो उससे तुम्हारे को कोई खतरा नहीं है ऑफिस में, उन्हें है माइनॉरिटी में, जैसे रियाद में है, तो उनकी हिंदू बोला भाई मैं तिरुपति जाके आया, ये लो प्रसाद लो, शोएब भाई बोले अरे कहाँ का लगाया यार, इन्हें तिरुपति बोल रहा है, इन्हें फिर क्या है कि कल के दिन मेरे बॉस से शिकायत कर देगा, कुछ से भी हो जाएगा, चुप इसका प्रसाद खा लेंगे। यहाँ पे कौन सी जबरदस्ती है, मेरे भी मैं नहीं खाता, कोई बात नहीं है, किसी और को दे दे। यहाँ पे भी नहीं जबरदस्ती है, ताल्लुकात खराब होते हैं, ऑफिस है, मेरा बिजनेस है, कल के दिन उन्हें मेरा मैनेजर बन जाएगा, ये बेतुक के दूर दूर के चीजा करके अल्लाह से नहीं डर रहे, सामने वाले से डर रहे, तो गलत बात है। हाँ, मगर जैसा अभी बाजी बताए, सास बहुत पावरफुल चीज है, उनके घर में रहना पड़ता, और वो लोग जिद्दी पे रहते, और जब मालूम होता कि बहू नहीं खा रही तो अब हल्ला के अंदर से उतारे बगैर उनको नींद नहीं आती, तो और नहीं खाए तो उसके बाद
और एक सवाल है, तो मेरी बच्ची की बच्चा आया तो जो है उन लोग बहुत वो है, सिर्फ ये पूरा बघार डालना, वो डालना, ये डालना। मैं नहीं मानती ये चीजों में, तो मेरी बच्ची तो करती नहीं कुछ भी, अभी तो उसको मैं सिखाई भी नहीं कुछ, भगवान वो है, थोड़ा बहुत लाइट कर लेती। तो उन लोग यही चाह रहे हैं कि पूरा ये करना, एवरीथिंग, हर चीज करना, मतलब हर बघार डालना, हर वो करना, जो भी पूरा करते ना वैसा करना। लेकिन मेरे को ये पसंद नहीं। तो उन लोग अच्छा है, एवरीथिंग है, करोड़पति सब है, बच्चा अच्छा है, सब है, तो बोल रहे हैं। लेकिन मेरा, मैं नहीं मानती और बच्चे भी नहीं मानती ये चीजों को। तो मैं अब सब वो कर रहे हैं, कह रहे इतना अच्छा है, नहीं दे रहे, क्या है, कैसा बिठाते वो ये। तो वही मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं और मेरे शौहर को बोलती मैं नहीं देती। तो अब क्या करना, लोगों का बोलते जा रहे मेरे को, आई तुम बहुत वो करते, ये करते, ये करते, वो करते, आए तो नहीं देते, वो ये। तो क्या मैं गलत कर रही हूँ? जितना मेरे हिसाब से तो मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन लोग जितना ऐसे आप बोलते हैं तो बर्दाश्त कर सकते नहीं दिखती। मेरा ये जवाब है कि आप पे अगर जुल्म हो रहा और आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहे, तो आप जो है उसको एक्सेप्ट करके चला लेना, क्योंकि आप वो पोजीशन में नहीं है कि आप उनको काउंटर कर सके, उनको जवाब दे सके या उनको लड़ सके। और वो उनके घर में रहते हुए उनसे पंगा नहीं ले सकते। और तालाब में रह के मगरमच्छ से पंगा लेके क्या जिएंगे बोलो, जिंदगी अजाब बना देते वो लोग। तो ऐसे उस पे क्या है, मसलियतन बोल देना, सोचने की मतलब शुरू में बता देना ये नहीं है, मगर अगर आप जबरदस्ती कर रहे, अगर आप जो है ऐसा बोल रहे करो बोल के, तो मैं कर लेती हूँ बोल के आप कर लो, और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोल के पढ़ के खा लो। और जो है अल्लाह के सामने तो वैसे भी गुनाह नहीं है, अल्लाह ताला तो वैसे भी माफ करना है। उसके अलावा दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हिदायत दे, आपके सास ससुरों को हिदायत दे और कौम को हिदायत दे बोल के दुआ कर लेते हुए आप आगे बढ़ना, उसको उतना बड़ा इश्यू नहीं बनाना। और कभी भी कोई चीज को अगर हटाना है, चेंज करना है, तो उस सिचुएशन में आके लड़के नहीं हासिल होता। उसके अलावा मामला ठंडा हो जाने के बाद में, कभी अच्छे माहौल में, जब उन्हें अच्छे मूड में रहते, बात को समझाने की कोशिश करते रहना। आज नहीं तो कल इंशाल्लाह हिदायत पे आएंगे। बात करना तो नहीं छोड़ना, और जो है अंदर दिल में कराहियत करना जरूरी है कि ठीक है मैं कर रही हूँ, मेरे को पसंद तो नहीं है अल्लाह ताला, मगर ये मजबूरन में कर रहा हूँ और मेरे को कराहियत हो रही, पसंद नहीं है बोल के वो जज्बात के साथ करे तो कोई आपको गुनाह नहीं है। आपके बच्ची के साथ भी अगर करे तो कोई गुनाह नहीं है, अल्लाह ताला माफ करने वाला है। और आपके सवाल के लिए कि आयत नंबर 173 में क्लियरली बताया गया है कि इसके ऊपर जबरदस्ती नहीं है। ये तो मुसलमान घरों में कंट्रोवर्शियल चीज है। यहाँ तक कि अगर आप रेगिस्तान में, बियाबान में फंसे हुए हैं और आपको वहां पे सिर्फ सुअर का गोश्त मिल रहा, तो आप सुअर का गोश्त भी खा सकते, नहीं तो आपकी जान चले जाती। तो इस तरीके से जब कश्मकश के मामले होते तो इस्लाम जो है सख्ती का मामला नहीं करता, ऑप्शन देता। मगर आप ये देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मदीना था कैसा, वहां पे जानवर का गोश्त चीज मिलता था, खेती बाड़ी तो थी भी नहीं, और जानवर के गोश्त में भी क्या वो जमाने के जैसा यहाँ पे चिकन सेंटर, वहां पे मटन सेंटर, इतने दुकान थे कुछ भी नहीं थे। जो जंगल में थोड़े थे जानवर, कभी शिकार कर लिए तो खा लिए, नहीं है तो थोड़े बहुत जानवरों के साथ ही जीते थे। वैसा जानवर अगर एकदम इतनी बड़ी गाय या इतनी बड़ी ऊंट एकदम मर गई गर्मी की वजह से, उस पर अल्लाह का नाम लेके जुबान नहीं करे, उसको लेके जाके फेंकना कितनी बड़ी तकलीफ की बात की होंगी, क्योंकि गोश्त रिज़्क़ था वो जमाने में, और गरीबी की हालत थी मदीने में। तो ये आयत हमारे लिए उतनी मुश्किल की बात नहीं, हम ये दुकान नहीं तो वो दुकान चले आते हैं। अमेरिका में इधर नहीं तो 2 किलोमीटर आगे चले गए तो भी तुम्हारे को हलाल गोश्त की दुकान मिलती है। हैदराबाद में तो गली गली हलाल ही है, कहीं तो भी सिकंदराबाद में गए तो जरा पूछना पड़ता। तो हमारे लिए जिस तरीके से आयत उतनी शिद्दत वाली नहीं दिख रही, मगर जरा थोड़ा दर्द महसूस कीजिए मदीने के टाइम पे सहाबियों के लिए, उनके ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से, वहां पे जहाँ चावल गंदम वगैरह, ये पालक की, अम्बाड़ा की भाजी, ये सब चीजें नहीं रहते थे वहां पे खेती नहीं होती थी, तो सिर्फ और सिर्फ गोश्त खाते थे, पानी पीते थे वो लोग। तो जो है वैसे लोगों के लिए गोश्त सब कुछ है, और गोश्त के ऊपर अल्लाह ताला ऐसी आयतें उतार दिए कि जो है हराम गोश्त है ये नहीं खाना। और कई लोग मुसलमान के साथ काफिरों के घर में रहते थे, जैसा कि एक बेटा जो है मुसलमान बन गया और बाप अभी भी मुसलमान नहीं है, और भाई जो है मुसलमान नहीं है, और उन लोग जो है उनके किसी और भगवान के नाम पे गोश्त खा के काट के लेके आके एक ही बिरयानी में पका रहे। अब क्या खाना, पका एक ही बिरयानी, मगर गोश्त गलत है। तो उनके लिए कितनी मुश्किल होती थी, उनके एक ही घर में रहते हुए तकलीफ उठाना और वो गोश्त खाना, और जबकि घर उन्हों चला रहे, बाप चला रहे या भाई चला रहा। तो उनके लिए जरा दर्द महसूस कीजिए कि ये चीजें छोटे मोटी नहीं है, बहुत बड़ी चीजें हैं। और अल्लाह ताला जो है इसके ऊपर सब्र दिया उन लोगों को कि वो लोग
सामने इतनी कीमती चीज को भी हाथ नहीं लगाते थे अगर उसको ज़िबा करने का मौका नहीं मिलता था। अब रही बात है हबीब भाई का जो सवाल है, हबीब भाई टिपिकली जो फातिहा का है, वो लोग क्या बोलते हैं, नाम के वास्ते अल्लाह का नाम ले लिए भाई, क्या बोलते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिए ना, हो गया, अल्लाह का नाम आ गया। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद में गौसे पाक का नाम लो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लो, हजरत अली का नाम लो, क्या चलता? हम शुरू में तो अल्लाह का नाम ले लिया ना, हम अल्लाह के खिलाफ है, अल्लाह के खिलाफ तो नहीं है, बल्कि फातिहा को जस्टिफाई करते रहते। मगर फातिहा का खाना भी हराम है, और जाकिर नायक कभी इसका बहुत बड़ा फतवा दिए थे क्लियरली। चेन्नई में बहुत बड़े 4-5 लाख लोगों का मुजमा आया था, उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने यही आयत को, आयत नंबर 173 को कोट करके बोले यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है अल्लाह के अलावा किसी और का नाम, तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ। हाँ, मुसलमान वली अल्लाह, मुसलमान सहाबियां, मुसलमान पैगंबर का नाम ले सकते क्योंकि उन्होंने भी अल्लाह के पैगंबर है, उन्होंने भी अल्लाह के तरीके पे चले। नहीं बोले अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लेना ही नहीं। हाँ, किसी और का नाम लो ही मत, नाम ही मत लो। खाली रेस्टोरेंट में पैसे दे के खरीद के खा लो, या मिठाई की दुकान में पैसे दे के खरीद के खा लो, किसी का नाम नहीं है, बस बनाए बेचे, वो चलता। मगर स्पेसिफिकली नाम कहीं को ले रहे, जब मालूम है कि हर चीज अल्लाह की है तो फातिहा स्पेशली देने की जरूरत क्या है? जब हर चीज अल्लाह के सवाब पे जा रहा तो फिर गौसे पाक का फातिहा कहीं को बोल रहे, तो अल्लाह का फातिहा बोलना था। गौसे पाक का फातिहा कहीं को बोल रहे, 11वीं कहीं को बोल रहे, 12वीं कहीं को बोल रहे, 13वीं कहीं को बोल रहे, कहीं ना कहीं तुम इनका नाम ले रहे ना, इनसे लिंक कर रहे, वो अल्लाह ताला को पसंद नहीं। जैसा बाप है, बेटा जो है बाप को नहीं मानता, नहीं सुनता, नौजवान हो गया, अपनी मर्जी करता, सब एक्सेप्ट करता, मगर तो मेरे बाप नहीं है बोल तो बाप नहीं बर्दाश्त कर सकता। उन्हें पड़ोसी मेरा बाप है बोल तो बाप को बर्दाश्त नहीं होता। उसी तरीके से अल्लाह ताला इज्जत वाला है, बाप के अलावा किसी और को बाप नहीं बोल सकता। हाँ, इन्हें मेरा भाई है, इन्हें मेरा दोस्त है, इन्हें मेरा वो है, मेरा हमदर्द है, सब बोलो। बाप को किसी और को बोले तो बर्दाश्त होता। उसी तरीके से अल्लाह ताला बोलते हर चीज मैं पैदा करा, हर 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 जो है जानवर मैं पैदा करा, तुम्हारे को इतने बड़े ऊंट को काटने की सलाहियत मैं दिया। हेलो, आवाज आ रही मेरी? हेलो, आ रही। तो इतने बड़े जानवर को काटने की सलाहियत, ऊंट को काटना, दो लोग मिलके मजाक नहीं है, एक लात मारे तो उड़ जाता। वो अल्लाह की ताकत और हिकमत है कि इंसान सीख लिया, हाइट में कम होने के बावजूद में, ताकत में कम होने के बावजूद अल्लाह ताला अपने को हावी कर दिया जानवरों को हुक्म करने की और जानवरों को काटने की। तो अल्लाह ताला क्या बोल रहा है? टैक्स ले रहा है। अल्लाह ताला पैसे पूछ रहा नहीं, पूछ रहा, सिर्फ नाम अल्लाह का नाम लिया करो। खुसूसन चावल और खीर के ऊपर, मिठाई के ऊपर, जलेबियों के ऊपर नहीं, सिर्फ गोश्त के ऊपर। क्यों? क्योंकि गोश्त में जान ली जाती। वही आप खीर बनाओ, चावल की खीर बनाओ, मलाई डालो, खोवा डालो, उसके ऊपर आप अल्लाह ताला बोले किसी का भी नाम ना लो, खा लो। मगर जब कोई जान ले रहे, कोई बकरे की जान ले रहे, कोई ऊंट की जान ले रहे, चाहे वो चिकन की भी जान ले रहे, जान लेने वाला मैं छू, यहाँ पे मेरा नाम आना जरूरी, नहीं तो नहीं है, नहीं तो फिर तुम नहीं खा सकते। तुम किसी कुत्ते को डाल दो या किसी को भी डाल दो, वेस्ट मत करो। तो ये चीज पे अल्लाह ताला कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और आप देखो कितनी शैतान की जहालत है, क्या बोलना कि आप देखो कहीं भी दरगाह पे जाके लोग जो है खीर बना दो बोलते नहीं, राइट काटते। जो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है कि जान लेते वक्त अल्लाह का नाम नहीं, आप कुछ और बनाए तो चलो, मगर कई जगह पे देखो आप, मन्नत पूरी हुई तो बकरा कटना, वो बकरा कट के बिरयानी पकना। क्यों? क्योंकि शैतान को मजा जब भी चाहता कि वहां पे जान ली जाए और अल्लाह के अलावा किसी और को इंक्लूड करो। हाँ, तो शारी क्या करते? अल्लाह को भी इंक्लूड करते, वैसे बकरे को भी इंक्लूड करते। देखो देखो, अल्लाह का नाम भी तो आ गया ना, हम बकरा काटते वक्त अल्लाह अकबर बोल के काट देते, मगर अल्लाह के साथ गौसे पाक भी इंक्लूड कर देते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इंक्लूड कर देते। हजरत अली, मौला अली की दरगाह है, हजरत अली की बहुत बड़ी दरगाह है मौला अली में, तारनाका के आगे, वहां पे बकरा कटेंगे तो अल्लाह का नाम भी लेंगे, अली का भी नाम लेंगे। तो इस तरीके से शैतान की जिद देखो, बकरा ही कटाता, क्या जरूरत थी बकरा कटाने की? आप खीर भी बना के हो सकते थे, मगर शैतान की जिद उस तरीके से। खैर, मगर तो लोग क्या करते, अपने देखो शैतान कैसा बाप दादा के तरीकों को कैसा झुटलाता, मतलब कैसा बेवकूफ बनाता, कैसे कैसे लॉजिक देते। अल्लाह के लिए कर रहे, अल्लाह का सवाब कर रहे, तो अल्लाह का नाम क्यों नहीं आ रहा, दूसरों का नाम क्यों आ रहा? अच्छा, अल्लाह के लिए कर रहे तो अल्लाह की जमीन तो हर जगह है,
आप अपने घर में भी काटो बकरा, लेके जाके उतनी दूर बस में डाल के बावर्ची को लेके खस्साब को लेके जाके बकरा बंद के लेके जाके वो उतनी दूर की गांव की वो जो पहाड़ी शरीफ की दरगाह के पास जाके वो दरगाह के अहाते में जाके वहां बकरा काटना क्या लॉजिक है? और उतनी दूर जाके वहां पे बकरा काट के बोल रहे नहीं नहीं नहीं, ये बुजुर्गाने दीन के लिए नहीं कट रहा, अल्लाह के लिए कट रहा। तो किसको बेवकूफ बना रहे? अगर अल्लाह के लिए कट रहा तो कहीं भी कटना था ना। जैसा हम बकरीद के दिन बकरा काटते, कहीं भी काट लेते, आपके घर में आप काटते, हमारे घर में हम काटते, कहीं भी करते। जगह नहीं मिली तो रियाद में तो कोई खुली जगह पे चले जाते, कोई स्लॉटर हाउस पे चले आते, अल्लाह का नाम है, कहीं भी काटो काटो, लाओ गोश्त लाओ, बकरीद की ईद मना लो। रियाद में तो मेरे हिसाब से दमाम में ऐसी होता होगा, तो क्योंकि वो अल्लाह का है कहीं भी काट लेते। मगर दरगाह का है तो लेके जाते उतनी दूर, टूरिस्ट में डाल के, बस में डाल के, गाड़ी में डाल के लेके जाके वो दरगाह के सामने, जैसा हिंदुओं के मंदिरों में मंदिर के सामने बकरा करता दसरा के दिन वगैरह जो है। तो ये कैसी शैतान, कैसा किस तरीके से जिद कर रहा, कैसा अपना सत्ता अपना पावर बता रहा, और ये चौतरफ हो रहा। आप लोग नहीं कर रहे अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान के जो अपने क्लास के साथ क्या है, शोएब भाई जैसा बोल रहे, सब ये चीज से पाक है, मगर आपके नजरों के सामने हो रहा। आपके बकरा कट रहा वो दरगाह की सरजमीन में जाके, और अल्लाह के अलावा अल्लाह का नाम ले रहे और अल्लाह के अलावा दूसरों का नाम ले रहे। आप और हम क्या कर रहे हैं, कितनी कोशिश कर रहे हैं, कितने बार बोल सकते। एटलीस्ट ये जो ऑडियो के जो 10 मिनट है जहां पे हम ये आयत की तफसीर करें और मैं ये लॉजिक भी पेश करा कि उस जमीन में क्यों कट रहा, उतनी बात तो भी पहुंचाना ना हम लोग। वरना आयत आप और हम पढ़ ले के क्या फायदा अगर आयत उन लोगों तक नहीं पहुंची जिसके लिए आयत उतारी गई। हमारे लिए उतारी नहीं गया ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो ये सब चीजों से पाक है, मगर किसके लिए आयत उतारी गई, उन लोगों के लिए आयत, तो उन तक पहुंचाइए ना कम से कम ये हिस्सा। तो जो है मेरी गुजारिश है कि कम से कम ये शेयर कीजिए। अपने पास तो आम है, कितने भी दाढ़ी वाले रहो, टोपी वाले रहो, ये आयत को जो है उड़ा मार देते हैं, खत्म कर देते हैं और अपनी मर्जी से उसको जस्टिफाई कर देते हैं। तो एक इसके अलावा एक ये भी मसला है कि कई बार अपने साथ अमेरिका में होता और हैदराबाद में भी होता, ये मसला भी मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि हम लोगों को मुसलमान ओनर दिखता, मगर शक आता कि शायद इन्हें पक्का ज़बिया गोश्त लाया, या नहीं तो जाके वॉलमार्ट से बेस्ट प्राइस से खरीद लिया, या नहीं तो दूसरे शॉपों से लिया नहीं लिया, या फिर मुसलमान चिकन सेंटर है मगर इतना जल्दी जल्दी मुर्गियां काट रहा, नाम पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा। तो ऐसे कंफ्यूजन के लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए एक बहुत अच्छी हदीस मैं आप लोगों को पेश करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये कई बार दिमाग में चलता, बहस होती, डाउट आता, नहीं यार वो दुकान वाला चिकन सेंटर मेरे को पसंद नहीं है, उन्हें मेरे को गड़बड़ वाला दिखता, मैं रात में शराब पीते हुए देखा उसको, मैं इन्हें क्या बिस्मिल्लाह बोल के काट रहा नहीं काट रहा क्या बोल के। तो ऐसे मसले मसाइल में लड़ाइयाँ होते, उसका दुकान को बदनाम करते, फिर इसकी दुकान उसकी दुकान को बदनाम करती। तो ये सब मसले मसाइल को खत्म करना चाहिए। एक हदीस जो है इसको सॉल्व कर देती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक हदीस आई थी, एक वाकया आया था कि जब कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा सवाल पूछ रहे कि कुछ हमारे पड़ोसी है जो मुसलमान बने मगर पहले क्रिश्चियन थे, और वो लोग मुसलमान बन गए मगर अब नए मुस्लिम है, उतने बारीकियां नहीं मालूम, सही तरीके से ज़िबा कर रहे कि नहीं कर रहे, कि गोश्त तो बना के बिरयानी भेज दिए, मैं खाऊं क्या? उनको बराबर छुरी तेज करके वो खून पूरा बहाना, वो लोग जल्दी मुंडी कट करके एकदम तोड़ देते हैं तो पूरा खून नहीं बहता। वो रग, गर्दन की जो रग कटना है, कटने के बाद में उसमें से जान रहना और हाथ जिंदा रहना। तो हार्ट जिंदा रहना बोल तो जान रहना, तो हार्ट पंप करके वो पूरा बॉडी में का खून निकाल के फेंक देना, क्योंकि खून गंदगी है, उससे बीमारियां आते, बैक्टीरिया आता है। तो ये इस्लाम जो है गोश्त को साफ करने का बेहतरीन नेचुरल तरीका बताया। मगर कई बार लोगों को पसंद नहीं आता और जल्दी में रहते, क्या करते, मुंडी को 2 टुकड़े करते, 2 टुकड़े करते, क्या हाथ बंद हो जाता, हाथ बंद हो गया तो खून बराबर नहीं निकलता। तो ये आयशा रज़ियल्लाहु जरा कंफ्यूज थे, ये बारी क्या मालूम है कि नहीं 90 मुस्लिम्स है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कोई मसला नहीं, आप उनसे जाके लड़ो नको, बहस नको करो, सीखो नको, सिखाओ नको, ह्यूमिलेट नको करो, वक्त के साथ सीख जाते। थोड़ा सा डाउट है तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के खा लो। तो उसी तरीके से आज मुशराबाद में कई चिकन के सेंटर्स है। अब कई लोग जो है, और उसके पास नको जा रहा, बिस्मिल्लाह जोर से नहीं पढ़ रहा, उन्हें हल्लू पढ़ रहा, उन्हें मेहंदी नहीं है तो उन्हें बिस्मिल्लाह पढ़े तो उसका चिकन नहीं खा सकते। अरे रे रे रे, भाई मुसलमान है, मुसलमान सेंटर है, बिस्मिल्लाह बोल के चिकन काटने का दावा दे रहा, नहीं यार 100 चिकन कैसा काटता उन्हें 2 घंटे में, मगर नहीं काट रहा होगा, पानी भी नहीं पिला। अरे ये सब कहाँ देख के फड्डे करते।
आयशा रज़ी अल्लाह को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका क्या बताया? अगर थोड़ा मुसलमान है, दुकान है, मगर आपको अभी भी दिल मुतमईन नहीं हो रहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के खा लो। ये अनोइंगली हो गए सब चीजों को। मगर कोई सामने जाके वहां से लेके आ रहा, जैसा आजकल सुगुना चिकन सेंटर बोल के है, उसमें हलाल भी मिलता, नॉन हलाल भी मिलता। हलाल का रेट 1 रुपया ज्यादा रहता, नॉन हलाल का कम रहता। अब उन्हें क्लियरली रिसिप्ट लेके आके बता रहा, मालूम है, उसके बावजूद भी जो है उन्हें घर के नजदीक है, उतनी दूर कहाँ जाऊं मैं, इन्हें घर के बाजू है, इन्हें होम डिलीवरी दे दे रहा, इसका चिकन में टेस्ट अच्छा है, इसका तोल अच्छा है, मैं ये खा लेता, बोलता फिर गलत है। अगर आपको क्लियरली प्रूफ मिल चुका तो फिर उसके ऊपर एक्शन, वो चीज को हम अवॉइड करना। मगर अननेसेसरली मुसलमान खोद लेते हुए, इन्वेस्टिगेट करते हुए, सीआईडी बनते हुए, मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं उसको रंगे हाथ पकड़ता हूँ, बिस्मिल्लाह 4 बार बोला, 2 बार नहीं बोला, पानी 1 ml पिना है, 2 ml पिना के, ये अननेसेसरली बहसों में नहीं जाना। इससे शिद्दत, लड़ाइयां झगड़े और कौम की मजबूती टूटती और शैतान को बहाना मिलता दुश्मनी करने का। अब इसके ऊपर मैं आपको और एक हदीस आयशा रज़ी अल्लाह को बताता हूं मैं, जहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आयशा रज़ी अल्लाह एक बार सवाल पूछे कि नॉन मुस्लिम्स जो है हमारे को गोश्त भेजे, और वो भी कौन से, उनके ईद के दिन, तो हम वो बिरयानी बनाए होला, और उनके ईद पे, जैसा दिवाली के ऊपर उनके पास से बिरयानी आई और लड्डू आए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, नहीं खाना, बोलते नहीं खाना, बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मगर और लड्डू आए, मगर लड्डू प्रसाद बन के नहीं आए, खाली डब्बों में पैक करके आए, तो वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और लड्डू खा लो बोले, क्योंकि उसके ऊपर उनके भगवान का नाम लिए। नहीं, ये लड्डू प्रसाद के लड्डू है, इसको भगवान के ऊपर आरती उतारे तो मत खाओ फिर। तो इस तरीके से जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीट के ऊपर, गोश्त के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज करे थे। और ये सब बारीकियां हैं, और जो है इसके ऊपर और कुछ सवाल है तो पूछिए। आदिल भाई, कोशर मीट खा सकते हैं? कौन है ये? मसीह भाई पूछे, कौन है ये सवाल पूछे सर? मुजम्मिल हूँ। मुजम्मिल भाई, ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। कभी ट्रैवलिंग करते वक्त प्लेन में सिर्फ अगर नॉनवेज चूज कर रहे हैं आप, तो कोशर मिलता, हलाल बोल के नहीं मिलता। अरब के पूरे उलमाए, मेजॉरिटी ऑफ द अरब उलमाए जो है कोशर क्रिश्चियनों का भी खा सकते हैं। अमेरिका में गए तो मैकडोनल्ड्स में भी खा ले सकते बोलते। इंडिया के हिंदुओं का नहीं खाना, चाइना के बुद्धिस्टों का नहीं खाना, इन लोगों के, क्योंकि अहले किताब है, इनके ऊपर किताब नाजिल की गई। मगर कुरान में आयत है कि अहले किताब यानी कि यहूदी और क्रिश्चियनों औरतों से शादी कर सकते बगैर कन्वर्ट करे, और उनका गोश्त भी खा सकते, क्योंकि वो लोग गोश्त के मामले में बहुत प्योर रहते। कोशर जो है, क्योंकि उनका खुदा भी अल्लाह है और वो लोग भी पूरा खून निकालते, तो उनका कोशर जायज है बोल के अरब के उलमाए बोलते, क्योंकि वो लोग इस आयत को जाते। मगर इंडिया के आलिमा, ऑलमोस्ट पूरे बड़े आलिमा जो है इस बात से इत्तेफाक नहीं करते, क्योंकि वो लोग आज के अहले किताब, वो जमाने में शायद कुछ तो भी दीन था होगा, आज के ज्यूस और क्रिश्चियन तो बहुत गंदे हैं, वो नाम खुदा का भी बदल दिए, सब बदल दिए, सब ये कर दिए, तो नहीं खाना बोल के बोलते। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इसमें। आप बहुत बड़ा उलमाओं का ओपिनियन आधा इधर है आधा उधर है। मेरा पर्सनल ओपिनियन तो, मैं तो अहले किताब का गोश्त खाता हूँ। मेरे को इंडिया में नहीं खाता मैं, हिंदुओं का नहीं खाता मैं, क्योंकि वो लोग अहले किताब नहीं है। मगर अमेरिका और कोशर, अमेरिका में क्रिश्चियन रहा और कोशर रहा तो मैं खा लेता हूँ। अब ये बारीकियों में नहीं जाना कि भाई वो लोग खून कितना निकालते नहीं निकालते, क्या है, ये सब बारीकियों में नहीं। मैं वो ओपिनियन पसंद करता हूँ पर्सनली, और मैं कभी भी इस्लाम में इजी रास्ता चूज करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही सुन्नत थी, यही तरीका था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू के दिन में जो है, पहले हर नमाज को एक नया वजू बनाना पड़ता था। पहले के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुरुआती दौर पे हर नमाज में वजू रहो न करो, जोहर में वजू है, वही वजू से असर पढ़ लेते, नहीं था, पहले नहीं था, असर को नया फ्रेश वजू बनाना। उसके बाद में अल्लाह ताला लोगों को स्ट्रांग करना चाह रहे, टेस्ट करना चाह रहा था, और सहाबिया हर बार नया वजू बनाते थे। उसके बाद में अल्लाह ताला चेक करे, उनके आजमाइश को अप्रूव करने के बाद में बोले, अब मैं आसानी देता हूँ, अगर आपका वजू रह गया तो उसी पुराने वजू से पढ़ लो। तो उसके बाद में अब ऑप्शन ये भी है वो भी है। मगर ईमान क्या बोलता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, मैं मेरी उम्मत को तकलीफ में नहीं डालता हूँ, मैं मेरे दीन को आसान बनाता हूँ, इस्लाम आसानी का रास्ता है, मैं जो है फ्रेश वजू नहीं बनाता हूँ, आसान तरीका ढूंढ लेता हूँ बोल के उसका ऑप्शन चूज करे। मगर कुछ सहाबियां
वजू के सिफत की वजह से, वजू की अहमियत की वजह से फ्रेश वजू बनाना कंटिन्यू करते थे ताकि उनको वजू का सवाब मिला। मगर क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे थे और वो सुन्नत बनता, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिद्दत से कोई चीज करे तो फिर वो फर्द के लेवल पे जा सकता था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसान तरीका चूज करे। तो मैं उसी तरीके पे जाऊंगा, जैसा आप सफर में है, आप नमाजें मिला सकते हैं, कम कर सकते हैं। मगर कुछ लोग फुल भी नमाजें पढ़ते, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजें कम करते थे, हालांकि दीन में शिद्दत करते थे मगर आसानी का रास्ता चूज करते। तो मेरा इसलिए उस सुन्नत के ऊपर, रसूलुल्लाह की उस सुन्नत पे मैं जो है पर्सनली, मेरे को कोशर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोशर मीट खा लेता हूँ। और अभी मतलब खाने का मौका तो मिला नहीं, जहाँ भी जाओ हैदराबाद में हलाल था, यहाँ पे तो फुली हलाल है, ऑप्शन तो मिला नहीं। मगर मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, खाया तो नहीं अब तक मैं, मगर मेरे हिसाब से ओके है। मगर ये आपका पर फैसला है, अगर आप ये भी ओपिनियन लिए तो मेरे हिसाब से ठीक है। अगर आप इंडिया के पूरे उलमाओं का ओपिनियन लिए तो लोग अहले किताब को अलग तरीके से जज करते हैं। मगर वही आप देखिए इंडिया के उलमाओं के अगर हिपोक्रेसी इस तरीके से मैं पिक करता हूँ एक एस्पेक्ट में, इस्लाम में जिजिया सिर्फ अहले किताब से लेना अलाउड था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में जब बनी ये इजिप्ट वगैरह पे फतह करे तो उमर रज़ियल्लाहु जो है जिजिया लिए और उनको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी मर्जी से रहो बोले। मगर जिजिया सिर्फ अहले किताब का है। मगर इंडिया में जब मुगल या सल्तनत वगैरह जो है जिजिया लेने आए और जो है मुसलमानों से ज़कात ले रहे और क्रिश्चियनों से जिजिया ले रहे, हिंदुओं से क्या लेना समझ में नहीं आया। मगर करोड़ों का पैसा आता जिजिया से, तो इंडिया के उलमा बोल दिए हिंदू भी अहले किताब, वहां पे हिंदू अहले किताब बन गया और जिजिया ले लेते। मगर जब हिंदू का गोश आया तो लोग बोलते नहीं अहले किताब नहीं है बोल के। तो अल्लाह आलम, उनके भी स्कॉलर्स है, उनके पास भी बड़े बड़े आलिमा गुजरे हैं जो ये ओपिनियन रखते हैं। यहाँ पे भी ओपिनियन है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आपकी मर्जी है। मगर मेरा पर्सनल ओपिनियन और मेरी पर्सनल रिसर्च तो इसकी इजाजत देती। और अरब में तो बहुत स्ट्रांगली खाते वो लोग, तो अरब स्टूडेंट्स, अरब स्कॉलर्स वगैरह जो इस चीज को करते और इस हद तक जाते कि अरबा क्रिश्चियनों को शादी करते हैं, अमेरिकन यूरोपियंस, और कन्वर्ट नहीं करते। और इवन रॉयल फैमिली के लोग भी करते हैं, नॉर्मल लोग भी करते हैं, नॉर्मल दीनदार मुसलमानों को भी देखा मैं बगैर कन्वर्ट करे। मगर इंडिया में अगर आप क्रिश्चियन को शादी कर रहे तो उसको कन्वर्ट करा के शादी करते हैं अपने पास। हालांकि कन्वर्ट कराना चाहिए, मगर मसला ये क्या निकाह होता नहीं होता, तो वो लोग तो अहले किताब के साथ निकाह होता बल्कि क्रिश्चियन के साथ करते। मगर क्रिश्चियन मर्दवा मुसलमान औरत के साथ निकाह नहीं कर सकता, उसकी इजाजत नहीं है। जो अहले किताब की औरतें हैं मर्दवे नहीं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आपके ऊपर है ये। मैं आपके पूरे पॉइंट्स में आपको दे दिया। और कुछ सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। आदिल भाई, मेरे को ये पूछना है, अगर मैं मतलब यहाँ पे हमारे सुरजने बोलते ना कि बगाड़ डालो, तो मेरे को जब बगाड़ डालना रहता खाली मैं बिस्मिल्लाह रहमान बोल के नहीं पढ़ी तो चलता, झूठ बोली तो मतलब दाली बोल के बोल दे तो दिल नहीं मानता, लेकिन दाली बोल के बोल दे तो कुछ मेरे को तो गुनाह तो नहीं होता ना, वो पूछना चाहती। नहीं होता, क्योंकि जिद्दम सिद्धि कर रहे हैं आप, डाल दिए बल्कि बोल दो, कोई ऐसा मसला नहीं। झूठ जो है जबरदस्ती और लड़ाई झगड़े को मसलियतन सॉल्व करने के लिए डाल दिए, 10 बार डाले बोलो, 10 बार नाम ले लिए बोलो, खुश हो जाओ बोलो, कोई ऐसा मसला नहीं है। क्योंकि इस्लाम सिचुएशन को, और देखो कोई सामने वाला समझे ना समझे, अल्लाह ताला आपकी सिचुएशन, आपकी दिल की हालत, आपकी कैफियत, आपको इस चीज से जो कराहियत है उसको भी अंडरस्टैंड करता। और इस्लाम इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करता। इस्लाम बड़े चीजों पे पहले फोकस कर रहा है। आप हराम खा रहे क्या, आप रिश्वत की आमदनी कर रहे हैं, आप चुगली कर रहे क्या, आप बद पीछे किसी की गीबत कर रहे क्या, ये बड़े गुनाह हैं। मजबूरी में बगार डाल रहे नहीं डाल रहे हो, मेरे हिसाब से बहुत ही लो प्रायोरिटी। और अल्लाह ताला हमारे सब अंदर के बाहर के मसले मसाइल को बेशक जानता है, उसको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, तो उस पर उतना परेशान होने की जरूरत नहीं। इसके अलावा और कुछ सवाल? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। ये ऊंट का गोश्त खाए बाद वजू बनाना जरूरी है, नमाज पढ़ना है तो क्यों? शाहीन आंटी, वो ऊंट के गोश्त का बोल के नहीं, एक्चुअली उसके पीछे मसलियत क्या है कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में किसी को अदरक खा के देखे, अदरक और प्याज खा के आए थे मस्जिद में, उससे बदबू आई थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले जाओ मस्जिद में, आपको नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, आप चले जाओ। अरे मस्जिद से निकाल दे रहे आप नमाज को, बोले तो नहीं, आप बाजू वाले को बदबू से तकलीफ दे रहे। तो अदरक लहसुन से भी ज्यादा बदबू आती, गोश्त से भी। अगर आपको सामने वाले को
بدबू आ रही है, और एसिडिटी वाले, जैसे मेरे को थोड़ा एसिडिटी की तकलीफ है, ज्यादा स्मेल सामने वालों को आती, तो इसके मद्देनजर इस वजह से जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा था, हदीसों में पाया गया कि आप दोबारा वजू कर लीजिए ताकि मुंह में पानी डाल के अच्छा गार्गल करे, जैसा लिस्ट्रीन करे, जैसा साफ हो जाता, ताकि बाजू वाले को तकलीफ ना आए। और इस्लाम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबुओं को बहुत पसंद करते थे, परफ्यूम को पसंद करते थे, हालांकि पानी नहीं रहता तो भी पसीने में रहते थे। जुम्मे के दिन नहाना फर्ज क्यों करे, सुन्नत क्योंकि साफ सफाई को बहुत इस्लाम इंपॉर्टेंस देता, क्योंकि आपसे ज्यादा बाजू वाला तकलीफ होता, तो उसके मद्देनजर ये फैसला है। मेरा ये मानना है कि अगर आप लिस्ट्रीन से या कोई अच्छी चीज से मुंह अच्छा गार्गल कर रहे हैं तो आपको दोबारा वजू बनाने की जरूरत नहीं। गोश्त बाई इत्सल्फ हराम नहीं है, क्योंकि उनका गोश्त ही ज्यादा चलता था, इसलिए हदीस में उनका जी सिर्फ ऊंट का है, बाकी दूसरा गोश्त खा के नमाज पढ़ सकते बगैर वजू बनाए के, लेकिन सिर्फ ऊंट का गोश्त खा के वजू बनाना जरूरी है। स्मेल ज्यादा रहती है, जरा स्मेल ज्यादा रहती, तो वो जमाने में चलता था। गाय बकरी गाय तो बहुत कम होती थी, चिकन का तो नामो निशान नहीं था, उमूमन गोश्त बोले तो सिर्फ ऊंट का छुआ करता था, तो हदीसों में इसलिए ज्यादा ऊंट का जिक्र आ रहा, और जरा स्मेल भी थोड़ी सी ज्यादा रहती है ऊंट में, तो इस पे ज्यादा फोकस किया। अगर आप मुंह अच्छा वॉश कर लिए हैं तो, और किसी को तकलीफ नहीं है तो चल सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। मगर अगर आप एहतियातन करना चाह रहे, आप हदीस पे और ज्यादा शिद्दत से अमल करना चाह रहे, रसूल की बात को और तो दोबारा वजू बनाइए, जितना ज्यादा वजू बनाएंगे उतना ज्यादा सवाब है। अच्छा, मच्छी और प्रॉन्स खाए तो उससे वजू करना पड़ता है क्या? नहीं, अगर कोई स्मेल दे रही चीज तो मसला है। प्रॉन्स में भी जो है बिसान वो थोड़ी आती, तो इसके लिए उलमाए अपने तरफ से ओपिनियन दिए कि उसके ऊपर भी वजू कर लो, बल्कि खाने के टाइम पे बाद में मसला ना हो, बल्कि इस तरीके से। मगर ऐसा बैचल वो हराम चीज नहीं, एक तो हलाल चीज है, और कांस्टेंट रूल हर किसी को नहीं है। सिर्फ स्मेल, तकलीफ या डकार, गंदे डकार आए तो डकार से पता चल जाता क्या खा के आए बोल के, तो ऐसे डकार आ रहे अगर तो आप कर लो थोड़ा गार्गल, वैसा कुछ भी, वरना स्टैंडर्ड रूल तो नहीं है वो। और कुछ सवाल है? आज एक ही आयत कंप्लीट हुई, इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे, और कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मेरे को ये पूछना था, मतलब किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम है, मतलब डकारा बहुत आते, ऐसे गैस उसके नहीं, सिर्फ डकार का प्रॉब्लम है, तो नमाज में भी आते, बैठे जगह हर जगह डकारा ही डकारा आते, तो क्या नमाज मतलब उससे उनको मतलब सुकून मिलता? डकार आए तो जो उनको सुकून मिलता, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता। तो इसलिए मतलब नमाज भी पढ़े तो या कुछ भी करो, बैठो खाओ कुछ भी करो, उनको ज्यादा डकार का प्रॉब्लम है, दवाएं दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन नमाज हर पूरे पढ़ते, उन्होंने कुरान पढ़ते, सब करते हैं, लेकिन डकाना ज्यादा आते, तो उसमें तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, ये जमात के लिए है, क्योंकि पहले के जमाने में नमाज बोल तो जमात से होती थी, अलग पढ़ने का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं था, आज जैसा घर में पढ़ लेते वगैरह। पहले के जमाने में नमाज बोल तो जमात में, मस्जिद में, और आप नमाज पढ़ने के बोले दूसरों को तकलीफ, आप घर के अंदर कोने में अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपको डकार आ रही तो कोई मसला नहीं, उसकी तरफ नहीं है। तो ग्रुप के साथ, खुसूसन जमात में, मस्जिद के साथ आजू बाजू लोगों को तकलीफ नहीं होना, बदबू से उनका कंसंट्रेशन खराब नहीं हो रहा बोलते ये दिया गया, तो आपके ये केस में तो अप्लाई नहीं होता, कोई ऐसा कोई मसला नहीं है, और ये नेचुरल चीज है, आप रोक भी नहीं सकते, ये आती चाह रही है अपनी तरफ से आ रही, तो क्या कर सकते हो? जो चीज आपके हाथ में है उसके ऊपर आपको पूछ है। अंकल हमारा एक क्वेश्चन है, अगर बहुत सर्दी रही और अपन तैमुम करके नमाज पढ़े तो होती वो? हाँ कर सकते हैं, ऐसा मसला नहीं है। अगर जो है नमाज छूटने का डर ज्यादा है या बीमारी का मसला ज्यादा है कि सर्दी में हाथ डालने से और तबीयत खराब होती, तो इस्लाम जो है तयमुम बनाया है इसी चीज के लिए, जहाँ पानी नहीं मिलता और पानी मिलने के बावजूद भी बीमारी या सर्दी आने का खतरा ज्यादा हो तो आप कर सकते हैं। मगर अगर आपके जिस्म में वो ताकत और वो कुव्वत है, मैं कश्मीर में श्रीनगर में गया था, सुबह फजर के टाइम पे हम लोग मस्जिद से कहीं ट्रैवल करके निकल रहे थे, तो फजर के लिए रुके थे हम लोग, तो एकदम देहात में,
और वहां पे बुड्ढे बुड्ढे लोग आ रहे नमाज पढ़ने को और खुली टैंक में वजू बना रहे। मैं हाथ डाला तो करंट शॉक मारा। मैं बोला मेरे बस की बात तो नहीं है, इतना ठंड, वो भी कश्मीर बर्फ का टाइम पे मैं गया था फैमिली के साथ, तो बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं बोला मेरे से तो वजू नहीं बनता भाई, तो तैमूम बनाता। मगर शर्म आया मेरे को, वहां पे बुढ़े बुजुर्ग 70 साल के जिनकी कमर झुकी हुई है, वो लोग को सर्दी में जैकेट भी नहीं पहने हुए है, क्योंकि वो लोग पहाड़ी लोग हैं, वो आदत से है, उनको अल्लाह ताला कुव्वत और ताकत दिया, वो लोग ठंडे पानी से वजू बना ले, ना जिस्म कांप रहा ना कुछ कर रहा। तो जिसकी सलाहियत है, जिसको बीमारी नहीं है, जिसको ताकत है, कर सकते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसा आप कम उम्र के हैं, आपको प्रॉब्लम है, तो आप गर्म पानी प्रीफर कीजिए। गर्म पानी भी नहीं है, आप फजर में तकलीफ हो रही तो तयम्मुम कर ले सकते हैं। इवन वक्त चले जा रहा तो भी तयम्मुम कर ले सकते हैं। गुस्ल करने की जरूरत है, टाइम नहीं है तो भी तयम्मुम कर सकते हैं। तो तयम्मुम हमारे इस्लाम की खूबसूरती है, जिसको अल्लाह ताला आसानी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमारे को मिली गई। इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इसको अब्यूज नहीं करना है। कई लोग माशाल्लाह ठंडे पानी से नहाते, मैं लिटरली देखा हूँ, हमारा वॉचमैन गांव के लोग वो भी बाहर खड़े रह के खुले में ठंडा पानी सर्दियों में खड़े रह के नहाते। हम लोग सोच भी नहीं सकते ठंडी हवा को। तो जिसकी जो सलाहियत है उसके ऊपर है। अगर आपको तकलीफ वाकई में बहुत हो रही और जो है नहीं हो सक रहा, उससे आप वजू करने से डर रहे और मस्जिद नमाज ही छोड़ देने की आ रही है, रोने की बात आ रही, तो आपके लिए माफ है बेटा, आप कर ले सकते हैं, आपको कोई ऐसा मसला नहीं है। पर जिसकी कुव्वत है, अगर आप बड़े हो गए, आप स्ट्रांग हो गए, आप सुपरमैन बन गए, तो आप कोशिश करना इसको नहीं छोड़ना, वजू पानी से बनाना, ठंडे पानी से बनाने की कोशिश करना। गर्म मिल गया नसीब अच्छी आप। और कुछ सवाल? चलिए अब नहीं है तो फिर आज यहीं पर आप कर देंगे, एक आयत लंबी चली गई। इंशाल्लाह कल जो है ये कोशिश 3 आयतों को एक साथ रैप अप कर देंगे फिर। चलिए अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।